discuss about superficial reflexes. Now, as we discussed last time, what is a reflex? So, reflex is an involuntary response to a stimulus, integrity of which depends on an intact reflex arc. Now, the superficial reflexes. So, this group of reflexes will include plantar reflex, abdominal reflex. So, these are polysynaptic reflexes which are evoked by cutaneous stimulation. और जैसे रिफ्लेक्स आर के कंपोनेंट्स डीप रिफ्लेक्स में होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी 5 कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1 रिसेप्टर, सेकंड इज एफरेंट न्यूरॉन, थर्ड इंटीग्रेटिंग सेंटर, then efferent neuron and an effector. So when we talk about receptor in cases of superficial reflexes, so prenerve ending was just an example, but otherwise the receptor can be Meissner's corpuscle, process, end bulb, any type of receptor which is present in the skin or the mucous membrane. So suppose if you are testing a reflex arc or a reflex, like now you will read about plantar reflex, where we give the stimulus by the pointed end of the hammer. So in that case, it forms a crude touch. So receptor of crude touch will be stimulated. If we give a fine touch, then those receptors will be stimulated. So here the receptor can vary depending on different types of receptor. But in the new edition of genome, it has come that mainly it is the free nerve endings which are the receptor. All other types of receptor were obsolete. This is written in genome, but you can still quote any type of receptor. Then second number as shown in the diagram, blue color. With blue color, it is the afferent neuron, which is the sensory pathway. So it will travel through dorsal root of the spinal cord. Then when it reaches the integrating center in the spinal cord, we have an interneuron. So that is why superficial reflexes are polysynaptic. Because first they synapse on an interneuron, then the interneuron synapse on an efferent neuron. So there are multiple synapses in between, hence it becomes polysynaptic. So जो स्टार से लेबल्ड है वो एक इंटरन्यूरॉन है ब्लू कलर का. फिर जो थर्ड, उसके बाद वो थर्ड इंटीग्रेटिंग सेंटर हो गया. फिर नंबर 4 जो रेड कलर से है वो है efferent पाथवे या efferent न्यूरॉन. और फिर फाइनली फिफ्थ क्या हो गया, इफेक्टर, जो मसल हो सकता है या ग्लैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट. So here it is just to show that both the afferent and efferent fibers pass in the same nerve. Because as you know, spinal nerve is a mixed nerve. It contains both sensory and motor fibers. So both can pass in the same nerve. Now the superficial reflexes. So now these superficial reflexes are divided into two. The ones which are carried by the spinal nerve, and then there are other superficial reflexes which are carried by the cranial nerve. तो एग्जाम में अगर superficial reflexes आता है तो आपको दोनों करने हैं, स्पाइनल नर्व वाले भी और क्रेनियल नर्व वाले भी. तो एग्जाम में अलग से मेंशन नहीं होगा. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में इट इज मेंशन that examine the superficial reflexes of the given subject, you have to do both spinal nerve reflexes and cranial nerve reflexes. Now we will talk about spinal nerve reflexes. It includes plantar reflex, scapular reflex, abdominal, anal, cremasteric and bulbocavernosus.
अब इसमें जो लास्ट के तीन है, एनल, क्रेमास्ट्रिक और बल्बो कैवर्नोसस, ये नहीं करने हैं। मतलब ये आपको इनकी थ्योरी पता होना चाहिए कैसे करना है और कौन सी लेवल ऑफ कॉर्ड होती है स्टिमुलेट, बट आपको ये करके नहीं दिखाने हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग के तीन करने हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स, स्कैपुलर रिफ्लेक्स एंड एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। So how it is done in the plantar reflex? We will scratch laterally on the sole of the foot. It will result in flexion of the big toe, the downward movement, and cord level is L5 S1. Scapular reflex में we scratch in the intrascapular area, मतलब दोनों scapula के बीच में there is contraction of scapular muscles. Segment C5 से T1. Abdominal reflex, we scratch on the abdominal wall. There is contraction of abdominal muscles. Segment T7 से T12. Anal reflex में we scratch near the anus. There is contraction of the anal sphincter. Segment is S3 S4. Then in the cremasteric reflex, we scratch the skin at upper and inner thigh. There is upward movement of testes, level L1, L2. Bulbocavernosus reflex is also just like cremasteric reflex. तो मेनली आपको सब्जेक्ट पे पहले तीन करने हैं और लास्ट के तीन का सिर्फ थ्योरी मतलब वैसे पता होना चाहिए इसमें करते क्या है और रूट वैल्यू क्या होती है। Now discussing about plantar reflex. So superficial reflexes में plantar reflex is very important और sometimes motor system अगर long question होता है उसके साथ short question में it can be just elicit plantar reflex. So इसमें ये डायग्राम अच्छे से ध्यान से देख लो। पैर का सोल है, पैर का मीडियल साइड में ग्रेट टो होता है और लेटरल साइड में लिटिल टो होता है। अब इसमें कर क्या रहे हैं, जैसे पर्सन ने पेशेंट ने क्या पकड़ा हुआ है, हैमर पकड़ा हुआ है। हैमर का पॉइंटेड एंड, मतलब लास्ट टाइम बताए थे हैमर की पार्ट्स। तो जब आप हैमर को पूरा नीचे से ओपन करते हो तो सबसे नीचे एक पॉइंटेड एंड होता है उसका, वो यूज करोगे या फिर यू कैन यूज की। तो उससे यू विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन जो इसमें दिखाई हुई है एरो से, नीचे से हील से स्टार्ट करोगे, लेटरली जाओगे फर्स्ट टो की लेवल पे, फर्स्ट लिटिल टो की लेवल पे यू विल टर्न एंड यू विल स्टॉप जस्ट बिफोर द ग्रेट टो। सो ये पूरी मूवमेंट होगी आपकी डायरेक्शन की। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हील होती है सब्जेक्ट की, दैट शुड बी सपोर्टेड ऑन द हैंड। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं रखोगे देन प्रॉपरली सोल जो होती है वो पूरा प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर पाते और प्रॉपर रिफ्लेक्स नहीं आता है। So instrument use, you can use blunt point, for example handle of the reflex hammer, a template, thumbnail, you can use key, की से बहुत अच्छा रिफ्लेक्स आता है। So how to elicit? पेशेंट को रिलैक्स करना है, उसको प्रॉपरली प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। नीज जो होती है वो बिल्कुल एक्सटेंडेड होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बैठा हुआ है तब उसकी नी को तब भी सीधा रखना है। आपने सपोर्ट करना है फुट को हैंड में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you will support the foot in hand. This helps expose the plantar surface. Flexed knee may abolish the upgoing toe. So it is important कि knee extended हो और foot जो है वो hand पे supported होता है। Then stimulus starts at the heel. Stimulator is moved up at a steady pace.
turning at the metatarsophalangeal joint, then continuing along the metatarsal pad from the little toe but not extending to the base of the great toe. ग्रेट टो तक आपको नहीं जाना है, ये एग्जाम में याद रखना. और लेटरल साइड से स्टिमुलेट करना स्टार्ट करना है. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना. फर्स्ट, पेशेंट को पहले पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना. पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, नी पूरी एक्सटेंडेड होनी चाहिए. देन यू विल यूज द ऑब्जेक्ट लाइक की, एंड जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है that should be neither too strong nor too light. बिल्कुल एडिक्वेट स्ट्रेंथ का स्टिमुलस यूज करना है और लेटरल साइड से ही स्टिमुलेट करना स्टार्ट करना है. एंड देन यू विल टर्न अपवर्ड्स medially at the level of little toe, and you will not touch the great toe. बेस ऑफ ग्रेट टो पे नहीं जाना है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्सटेंशन ओलिसिस लॉन्गस का टेंडन है. तो अगर पेशेंट में पॉजिटिव बैलेंस्की नहीं भी आ रहा होगा, आप वहां तक जाओगे तो वो आ जाएगा. तो इट इज हाईली सेंसिटिव. तो इसीलिए यू विल नॉट गो टू द ग्रेट टो. और रीइंफोर्समेंट के लिए वही रोटेट कर दो पेशेंट का हेड. सो रिफ्लेक्स में बी इनकरेक्टली एलिसिटेड इफ स्टिमुलेशन इज नॉट फर्म, स्टिमुलेशन इज टू मीडियल, मतलब लेटरल की बजाय आप मीडियल साइड में चले गए, या टू फास्ट था, बहुत फास्ट करा आपने, फुट बहुत ज्यादा कोल्ड है या एबनॉर्मली वार्म है. सो इन कंडीशंस में रिफ्लेक्स may not be properly elicited, या it may be incorrectly elicited. तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लांटर रिस्पॉन्स. सो अगर जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो कैसा आएगा, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, सारे टोज क्या हो गए हैं, फ्लेक्स हो गए हैं, मतलब डाउनवर्ड चले गए. और उधर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस्की नेगेटिव. सो नॉर्मली बैलेंस्की नेगेटिव होता है, या फिर नॉर्मल प्लांटर रिस्पॉन्स आप बोल सकते हो प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब डाउनवर्ड्स की तरफ मूवमेंट होगी. So flexion of great toe and flexion of all other toes, but at the level of ankle there will be slight dorsiflexion and inversion of ankle. Then there will be contraction of tensor fascia lata and adduction of thigh. So exam में ये components पूछे जाते हैं कि normal plantar response में आपको कैसा response मिलता है. तो नॉर्मल प्लांटर रिस्पॉन्स इज प्लांटर फ्लेक्शन, और इसमें क्या होगा, सारे टोज फ्लेक्स हो गए एंड दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो. देयर इज डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल, इन्वर्जन ऑफ एंकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर फेशियल लाटा एंड एडक्शन ऑफ थाई. तो ये आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स. तो इसमें भी देख रहे हो, उसने जो ऑब्जेक्ट यूज करा लेटरली मूव कर रहे हैं, ऊपर आए हैं, लिटिल टो की लेवल पे टर्न करना है और ग्रेट टो की बेस तक नहीं जाना है. और रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सारे टोज जो हो रहे हैं डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं या फिर फ्लेक्स हो जा रहे हैं. Now what is the abnormal response? The abnormal response is plantar extension or Babinski positive. So जो plantar extension response होगा, that is known as Babinski positive. As you can see in the diagram, the great toe is moved upwards. That is, there is extension and there is fanning of toes. मतलब सारे टोज एकदम दूर दूर हो गए हैं, दूर दूर स्प्रेड हो गए हैं और एक्सटेंशन हो गई है. उसको हम बोलते हैं फैनिंग ऑफ टोज. देन अगेन देयर इज डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड हियर एबडक्शन ऑफ थाई.
तो प्लांटर एक्सटेंशन या बैबिंस्की पॉजिटिव, उसके ये वाले कंपोनेंट्स हैं। एक्सटेंशन होगी टोज की, मेनली ग्रेट टो की, सारी फिंगर्स दूर दूर हो जाएंगी। शाइनिंग ऑफ टोज होगी, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड अबडक्शन ऑफ थाई। दिस इज ऑल्सो नोन एज बैबिंस्की पॉजिटिव। और अगर आपने अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन पढ़ लिया है तो उसमें डायग्नोस्टिक फीचर फॉर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज बैबिंस्की पॉजिटिव। तो अगर डिफरेंशिएशन में क्लिनिकल एग्जामिनेशन में किसी पेशेंट पे आपको कंफ्यूजन हो रही है यूएमएन और एलएमएन में, और अगर आपको बैबिंस्की पॉजिटिव मिल जाता है, then this sign is a sure shot diagnostic sign of upper motor neuron lesion. तो अगर बैबिंस्की पॉजिटिव है और कुछ और फीचर्स लोअर मोटर के मिल रहे हैं, even then it is said that the subject has an upper motor neuron lesion. Next. Now in these conditions reflex may not be elicited. तो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, जब ऑब्जेक्ट रब करा है सोल पे, देन इट इज नॉट लेटरली, मीडियली रब करा है, बिल्कुल सीधा सीधा। इसमें आपको कोई भी रिस्पॉन्स मिले आप उसको श्योर शॉट नहीं मान सकते वेदर इट इज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इट कैन बी आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया या फॉल्टी मेथड यूज करा जिसकी वजह से विड्रॉल हो गया, मतलब इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई सब्जेक्ट की कि उसने वैसे ही फुट विड्रॉ कर लिया, या वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से टो एक्सटेंड हो गया। सो ऑलवेज रिमेम्बर आपका मेथड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए लेटरली, और फोर्स ज्यादा भी नहीं यूज करना, कम भी नहीं यूज करना, बिल्कुल ऑप्टिमम फोर्स। देन इफ द पेशेंट इज एंशियस, again reflex may not be elicited. Then if the sole is too thick, sole बहुत ज़्यादा मोटी है, then it cannot come. If the sole and if the environment is too cold, or if there is paralysis of extensor hallucis longus. Now you must be knowing the function of EHL, that is extensor hallucis longus, और वो कहाँ इंसर्ट होती है। सो अगर उसकी पैरालिसिस है, even then the reflex may not be elicited properly. Now Babinski sign may be normally present in these conditions. मतलब ये normal condition ही है, but even then you are getting Babinski sign. So these conditions may be, मतलब these are the physiological causes of Babinski positive. So it is physiological, it is not pathological, but even then you are getting Babinski positive. So these are in infants who are less than 1 year of age. Infant का मतलब ही यही है जो बेबी है वो 1 year की एज से कम है, इनमें ड्यू टू दी नॉन माइलिनेशन ऑफ ट्रैक्ट्स, तो जो ट्रैक्ट्स है वो प्रॉपरली माइलिनेटेड नहीं है, इस वजह से यू आर गेटिंग Babinski पॉजिटिव, and this myelination completes by 2 to 3 years of age. So now if you get Babinski positive after this age, then it can be pathological. Before that it is physiological. Then in deep sleep you get Babinski positive in anesthetized patients and in post-ictal stage. Post-ictal stage मतलब जब एपिलेप्सी होती है या फिट्स पड़ते हैं किसी को, उसके बाद वाली जो स्टेज है फ्यू ड्यूरेशन वाली, उस टाइम पे अगेन ये साइन पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ पॉजिटिव Babinski साइन। पैथोलॉजिकल कॉजेज विल बी एनी कॉज लीडिंग टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो अगेन बच्चों में आपको Babinski positive मिलता है because they lack myelination of corticospinal tract.
Now, what is the pathway of plantar reflex? This is important and it is also complicated. तो अभी तक आपको वो 5 चीजें अच्छे से याद है. Receptor, afferent neuron, integrating center, efferent neuron and the effector. Now pathway क्या है? अब इसमें जब आप स्टिमुलेट कर रहे हो तो क्या सेंसेशन आ रही है? क्रूड टच की, बिकॉज आपने जब हैमर की पॉइंटेड एंड या फिर की से स्टिमुलेट करा तो जो भी स्टिमुलेट होगा वो जो वहां पे क्रिएट हो रहा है स्टिमुलस, वो क्या है? क्रूड टच, बिकॉज फाइन टच तो कॉटन से होता है. बट इवन देन इट इज सेड that some amount of fine touch also occurs and some fibers of pain are also stimulated. So if we just talk about crude touch, then the receptors will be stimulated for the crude touch. They will travel in the sensory afferents of the tibial nerve. Then they will reach the spinal cord segment L5-S1. Then now when it reaches L5-S1, now you know that it is a polysynaptic reflex. Now these sensory afferents will then travel through the anterior spinothalamic tract, because you know the crude touch is carried by anterior spinothalamic tract. Now if certain fibers of fine touch were also stimulated, then they will travel through dorsal column medial emitters. Now when they travel upwards, now you know all the pathway of the spinothalamic and dorsal column. Then they will reach the sensory cortex. Now the impulse will travel into the motor cortex. From here the corticospinal tract will descend and other extrapyramidal tracts. Finally the impulse will reach the lower motor neurons, that is the alpha motor neuron and the gamma motor neuron of L5-S1 segment of spinal cord. Now again the efferent nerve, that is the motor nerve, will travel in the tibial nerve and it will reach the effector muscle, which can either be extensor hallucis longus if extension occurs, or if the flexion occurs then it can be that muscle. तो ये पूरा पाथवे कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बस इतना याद रखना. स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने के बाद जो सेंसरी स्टिमुलस है वो सेंसरी पाथवे से, मतलब असेंडिंग ट्रैक्ट से सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, वहां से मोटर कॉर्टेक्स में, और फिर वहां से इंपल्स जो होगी वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट में जाएगी और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड पे दोबारा आएगी और फिर वहां से वो फाइनली इफरेंट नर्व में जाएगी और इफेक्टर मसल पे पहुंच जाएगी. So it is a polysynaptic reflex. So there are various interneurons which connect it at several segmental levels. तो इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में यही दिखा है कि पहले जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का जो दिखा है वो स्किन से रिसेप्टर्स गए, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचे, स्पाइनल कॉर्ड से आगे जो डार्क ब्लू कलर के फाइबर स्टार्ट हो रहे हैं वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं. तो या तो अगर वो डॉर्सल कॉलम के हैं तो बाद में क्रॉस करेंगे, और एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के हैं तो उसी सेगमेंट पे क्रॉस कर गए, ऊपर पहुंचे सेंसरी कॉर्टेक्स में. सो ये पूरा ब्लू वाला पाथवे जो है वो सेंसरी वाला है. फिर उसके बाद रेड वाला पाथवे स्टार्ट होगा जो मोटर वाला है. तो सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद वो मोटर कॉर्टेक्स में गए, फिर वहां से डिसेंडिंग ट्रैक्ट स्टार्ट हुए जो रेड कलर से है, और फिर वहां वो आके साइनैप्स करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन पे, और वहां से स्टार्ट हुआ हमारा इफरेंट पाथवे अगेन रेड कलर से, और वो पहुंच गया हमारी इफेक्टर मसल पे.
तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड पाथवे होता है कोई भी सुपरफिशियल रिफ्लेक्स का, और इसीलिए वो पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं बिकॉज मल्टीपल साइनेप्स है बीच में। नाउ व्हाट आर प्लांटर इक्विवेलेंट्स? तो मतलब एक तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है प्लांटर रिस्पॉन्स, इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांटर रिस्पॉन्स क्या हो सकते? स्क्रीन पे लिख रहे हैं। Now these are the plantar equivalents. So एक तो जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो हमने अभी सीखा प्लांटर वाला, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? ये सारे हो सकते हैं। जो सेंटर वाले में देखना, सेकंड वाले में वहां पे लिखा है चेडॉक साइन, फिर उसके बाद है शॉफर साइन, फिर उसके बाद ओपन हिम साइन, गॉर्डन साइन एंड बिंग्स साइन। ठीक है, तो आपको मेनली ये 5 याद रखने हैं, चेडॉक्स, शॉपर्स, ओपन हिम, गॉर्डन एंड बिंग साइन। सो अगर हम बिंग साइन की बात करें जो लास्ट वाला है, देन यू विल मेक मल्टीपल movements on the lower surface of the foot. तो वो मल्टीपल मूवमेंट से, स्मॉल स्ट्रोक से क्या होगा? अगेन यू कैन एलिसिट द रिस्पॉन्स। तो ये प्लांटर इक्विवेलेंट का फायदा क्या है? सपोज अगर किसी में नॉर्मली प्लांटर रिस्पॉन्स आप कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है और फिर भी आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि शायद इसमें बेबिंस्की पॉजिटिव होगा, या फिर मान लो कि एक्सटेंसर हालुसिस लॉन्गस की पैरालिसिस है उन पेशेंट में, या फिर मान लो उसका फुट एम्प्यूटेटेड है, तो उसका फुट नहीं है, then in those cases how will you elicit that if the person has positive Babinski or negative, then we can use these plantar equivalents, मतलब ये इक्वल है टू दी प्लांटर रिस्पॉन्स। तो इसमें ये सारे आते हैं, चेडॉक्स, शॉफर्स, ओपन हिम, गॉर्डन एंड बिंग। तो ये बीच के 5 जो होते हैं वो याद रखना। तो चेडॉक साइन में क्या करते हो? जो लेटरल मैलियोलस है उसके पास यू मेक अ सर्कल, देन इट इज नोन एज चेडॉक साइन। सिर्फ इतना ही याद रखना किसमें क्या करते हैं। सो इन दी चेडॉक साइन you make a small circle along the lateral malleolus. In the open hinge sign, you drag your fingers along the shin of the tibia. जो टिबिया की शिन है उसके अलोंग आप अपनी फिंगर्स को ड्रैग करते हो पूरा, मतलब नी से लेके नीचे एंकल तक पहुंचते हो और फिर वहां पे रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करते हो। So इसमें वही दिखा है, चेडॉक साइन में यू मेक अ सर्कल अलोंग द लेटरल मैलियोलस, ओपन हिम में पूरा ऊपर से नीचे, और एक गॉर्डन साइन बना हुआ है। गॉर्डन साइन में क्या करते हो? स्क्वीज करते हो काफ मसल्स को। तो जब आप काफ मसल्स को स्क्वीज करते हो तो गॉर्डन साइन मिलता है। और एक और था शॉफर साइन। शॉफर साइन में क्या करते हो? जो पीछे टीए का टेंडन है बिल्कुल एंकल जॉइंट पे, वहां पे उसको टाइटली स्क्वीज करते हो। सो वो होता है शॉफर साइन। सो बिंग्स साइन, नंबर 1 बिंग्स साइन, then number 2 चेडॉक साइन, ओपन हिम साइन, गॉर्डन साइन एंड शॉफर साइन। सो बिंग्स साइन में क्या करना है? मल्टीपल स्ट्रोक्स बनाने हैं सोल पे, एकदम रैपिडली बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रोक्स करो तो वो बिंग साइन है। देन चेडॉक साइन में यू मेक अ सर्कल अलोंग द लेटरल मैलियोलस। ओपन हिम साइन में आप टिबिया की शिन पे मूव करते हो ऊपर से नीचे तक,
Gordon साइन में you squeeze the calf muscle, और शाफर्स साइन में जो पीछे बिल्कुल टीए वाला टेंडन है वहां पे टाइटली स्क्वीज करते हो। तो ये 4-5 साइंस पूछते हैं एग्जाम में भी। अगर आपको प्लांटर रिफ्लेक्स मिलता है देन इट इज आस्क्ड कि व्हाट आर अदर प्लांटर इक्विवेलेंट्स या व्हाई डू यू नीड देम। सपोज अगर आपका किसी का फुट एम्प्यूटेटेड है तो उसमें क्या कर सकते हो, ओपन हीम साइन करके देख सकते हो या गॉर्डन साइन करके देख सकते हो। ये जो गॉर्डन साइन में यू स्क्वीज द काफ मसल्स। Now the Hoffman sign. Hoffman sign is again an equivalent of the plantar reflex, but it is described in the upper limb. So Hoffman sign is an upper limb equivalent of the Balinski sign. तो इसमें क्या करते हो, फिंगर को एकदम टाइटली उसको चटकते हो, जैसे फिंगर्स चटकते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें करते हैं। तो इसमें फिंगर फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इज ऑब्जर्व। सो यही इसमें करा है, यहाँ पे एक फिंगर को पकड़ा है और उसको टाइटली ऐसे फ्लेक्स करते हैं, और एकदम अगर वो बहुत ही टाइट रैपिड रिस्पॉन्स आता है then we can say that upper limb equivalent of plantar response is positive and this is known as Hoffman sign. तो आपको करके तो सिर्फ प्लांटर रिस्पॉन्स ही करना है एग्जाम में, बट उससे रिलेटेड ये सारे वाइवा हो सकते हैं। फाइन टच, सो फाइन टच से क्या करना है, जो अम्बिलिकस की डायरेक्शन है उसके टुवर्ड्स आपको अपनी कोई भी जो भी फाइन चीज है वो मूव करनी है। जैसे क्या करते हैं, जो हैमर के नीचे वाला पार्ट होता है जब उसको खोलते हो तब एक उसमें ब्रश प्रेजेंट होता है, उस ब्रश से वी विल टेस्ट द एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। तो अम्बिलिकस की डायरेक्शन के टुवर्ड्स लाना है, बाहर से सेंटर के टुवर्ड्स, जैसे इसमें कर रहे हैं। एक तो यही ऊपर वाला मार्जिन पे कर रहे हैं, कॉस्टल मार्जिन पे, फिर एकदम सेंटर से भी आप करोगे और फिर नीचे इंक्वाइनल मार्जिन से भी आप अम्बिलिकस के टुवर्ड्स लाओगे। So all the 3 directions में you will do it, then it is an abdominal reflex, and what you will see that there is slight contraction of abdominal muscle. Now scapular reflex. Scapular reflex में क्या करोगे, इंट्रास्कैपुलर एरिया, मतलब दो स्कैपुलर, इंटरस्कैपुलर एरिया in between the two scapula, again you will move the pointed end of your hammer from down to up। जो ये रेड कलर की लाइन बनी है इसके अलावा नीचे से ऊपर बहुत ही रैपिडली मूव करोगे, and then you will see the contraction of the scapular muscles, that is known as scapular reflex। और इसकी रूट वैल्यू क्या थी, C5 से T1। Discuss about the superficial reflexes carried by cranial nerve. I will only tell you the method. For each and every reflex, there is a different pathway that you will either read in the next lectures of cranial nerves, or you will have to read them yourself. So now the superficial reflexes carried by cranial nerve. First, we have the pupillary light reflex. Now it is of 2 types, direct and indirect, or indirect is also known as consensual pupillary reflex.
the afferent is carried by the second nerve and the efferent is by the third nerve and the integrating center is the midbrain. So in this light reflex, what you will do, you will use a torch and always remember that torch should always come tangentially. तो मतलब जैसे इस डायग्राम में बना हुआ है ये गलत है, इसमें क्या हो रहा है, टॉर्च एकदम सामने से आ रहा है, तो टॉर्च कभी भी सामने से नहीं आएगा, टॉर्च हमेशा साइड से आएगा, आपकी एकदम आंख के साइड से tangentially, मतलब बिल्कुल टेम्पोरल साइड से टॉर्च will come and then gradually it will come in the center, in the front. This is because अगर आप एकदम टॉर्च की लाइट सामने से लाओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा फ्राइटन भी हो जाता है सब्जेक्ट और अदर रिफ्लेक्सेस भी आ जाते हैं, तो आपको एकदम ट्रू रिफ्लेक्स नहीं मिलता है. So हमेशा टॉर्च should come tangentially, that is from the side. अब इसमें क्या कर रहे हैं, नेजल ब्रिज के ऊपर उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है, सो वो इसमें इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स टेस्ट कर रहे हैं. तो जब आप डायरेक्ट रिफ्लेक्स करते हो उसमें क्या करते हो, टॉर्च जो होते हैं टैंजेंशियली लाते हो, जैसे आप मान लो लेफ्ट आई का टेस्ट कर रहे हो, सो टैंजेंशियली टॉर्च लाओगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट टेम्पोरल साइड से, और लेफ्ट आई के थोड़ा सा सामने ले आओगे, तो वहां पे क्या होगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जैसे ही लाइट आएगी लेफ्ट आई की प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी. सो दिस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्स. अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपने टॉर्च मारी लेफ्ट आई पे बट आप रिस्पॉन्स देख रहे हो राइट साइड में, दैट इज इनडायरेक्ट. तो इसमें क्या होगा, राइट साइड की प्यूपिल जो होगी वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी. सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. तो इसमें इन्होंने सब्जेक्ट ने अपना हाथ नहीं रखा है नेजल ब्रिज पे, जो एग्जामिनर है उसने रखा है, बट आप एग्जाम में क्या कराओगे, एग्जाम में आप सब्जेक्ट को बोलोगे अपना हाथ नेजल ब्रिज पे रखिए, उससे क्या होगा, लाइट जो होगी, जब आप इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स टेस्ट कर रहे हो उसमें आपको ऐसा करना है, सो दैट लाइट डज नॉट क्रॉस डायरेक्टली फ्रॉम वन साइड टू द ऑपोजिट साइड and you can actually test the indirect reflex. ठीक है, तो आप टेंजेंशियली टॉर्च, जैसे मान लो इन्होंने राइट आई पे करा, तो टेंजेंशियली आप टॉर्च लेकर आए राइट साइड पे और रिस्पॉन्स आप देखोगे लेफ्ट आई में, तो लेफ्ट आई की भी प्यूपिल क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और बीच में सब्जेक्ट अपना हाथ रखेगा नेजल ब्रिज पे और इस तरह रखेगा कि थंब जो होगा वो प्रॉपर्ली ऑक्लूड कर दे पूरा नेजल ब्रिज, और नॉर्मली आपकी लाइट एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जा सकती. तो इसमें यही दिखाया है, टॉर्च जो है वो बिल्कुल साइड से आ रही है टैंजेंशियली. तो नॉर्मली बोथ द प्यूपिल्स विल कॉन्स्ट्रिक्ट, but if there is a cranial nerve third lesion, then there will be loss of indirect reflex, that is the efferent pathway. And if there is a damage to cranial nerve 2, that is afferent pathway is affected, then there will be loss of direct pupillary light reflex. And in the consensual reflex, that is in the indirect reflex, both the pupils constrict at the same side. तो जैसे इसमें टॉर्च की पोजीशन आपको वैसे रखनी है, साइड से आनी चाहिए टॉर्च की लाइट, सामने से नहीं आनी है. तो इसमें भी ये लोग टॉर्च सामने से ला रहे हैं, बट आपको हमेशा टॉर्च साइड से लाना है, ये याद रखना. टॉर्च हमेशा टैंजेंशियली आएगा या साइड से आएगा, और जैसे ही लाइट आ रही है तो प्यूपिल क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है. Now the accommodation reflex. Accommodation reflex, afferent is again second nerve
efferent is third nerve. So in the accommodation reflex, ये खुद भी करके देखना, इसमें क्या होता है, जब आप पहले नॉर्मली कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, फिर उसकी कुछ देर बाद आपको इमीडिएटली कहा जाए कि पास में, मतलब 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्यूपिल, और यू फोकस द टिप ऑफ योर नोज। तो मतलब अपनी नोज की टिप फोकस करो, या फिर आई से 25 सेंटीमीटर दूर आप एक पेन पे फोकस करो या फिंगर पे फोकस करो। तो ये आपका प्रोसीजर है एक्कोमोडेशन रिफ्लेक्स का। रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रिपल सी रिस्पॉन्स। तो इसमें आपको मिलता क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगी, कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल, दोनों आईबॉल्स बिल्कुल मीडियली आ जाएंगी, एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड कर्वेचर ऑफ लेंस। सो दिस इज द रिस्पॉन्स यू सी इन एक्कोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो पहले दूर देखना है, फिर आपको फोकस करना है टिप ऑफ योर नोज, एंड यू विल सी दीज थ्री रिस्पॉन्स। Now the corneal reflex, afferent is 5th nerve, efferent is 7th nerve, and here you will see the blinking of the eye. So 5th nerve जो होती है trigeminal nerve. Now as you all know, trigeminal nerve के 3 divisions होते हैं, ophthalmic, maxillary और mandibular. तो corneal reflex में जब आप कॉर्निया पे कॉटन को टच करोगे, तो अगेन यहाँ पे कॉटन बिल्कुल फाइन होगी और उसका एक पॉइंटेड एंड क्रिएट करोगे और उसको टच करना है कॉर्निया पे, और कॉर्निया के सेंटर में मत टच करना। कॉर्निया कहाँ होती है, आइरिस और प्यूपिल को कवर करती है। यू विल नॉट टच द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, बिकॉज उससे कॉर्निया डैमेज होने के चांसेस है, ठीक है, और फिर विजन लॉस हो जाएगी, वहां पे कॉर्नियल ओपेसिटी क्रिएट हो जाती है। तो कॉर्निया को बिल्कुल साइड में टच करना है। साइड में कहाँ पे, लिम्बस पे। अब लिम्बस क्या होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है उसको हम बोलते हैं लिम्बस। बिल्कुल वहां पे आप कॉटन को टच करोगे और आपको मिलेगा कॉर्नियल रिफ्लेक्स। जैसे इसमें कर रहे हैं, फाइन कॉटन क्रिएट करी और साइड से लेकर आ रहे हैं कॉटन, अगेन सामने से नहीं लानी है, साइड से लानी है, और टच कहाँ कर रहे हैं, लिम्बस पे, मतलब व्हाइट वाले पार्ट पे नहीं टच कर रहे हैं। व्हाइट वाला पार्ट कंजंक्टिवा है, आपको कॉर्निया पे टेस्ट करना है, तो आप कहाँ पे करते हो, लिम्बस पे। मतलब जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे आइरिस का बिल्कुल आउटर बॉर्डर है, वो वाला एरिया होता है लिम्बस। ऐसे वहां पे फाइन कॉटन का थ्रेड बनाना है और साइड से लेकर आना है और फिर टच करना है वहां पे। रिस्पॉन्स में ऐसे ब्लिंकिंग ऑफ द आई होगी। कॉर्निया के सेंटर पे मत टच करना कभी भी। कंजंक्टिवल रिफ्लेक्स, जैसे कॉर्नियल रिफ्लेक्स था वैसे ही होता है। एफरेंट इसका 5th नर्व है, इफरेंट 7th नर्व। रिस्पॉन्स क्या होगा, ब्लिंकिंग ऑफ आई। अगेन वैसे ही फाइन कॉटन का थ्रेड बनाना है, जैसे ऊपर वाले राइट डायग्राम में दिख रहा है। जो कॉटन है वो हम साइड से ला रहे हैं फाइन थ्रेड बना के और कंजंक्टिवा पे टच कर रहे हैं। मतलब जो व्हाइट वाला पार्ट है स्क्लेरा वाला, वो कवर्ड होता है कंजंक्टिवा पे। Again, you know there are two types of conjunctiva, bulbar and palpebral. Palpebral तो जो eyelid के पीछे होगी और जो स्क्लेरा पे दिखती है वो bulbar। तो आपने ये व्हाइट वाले पार्ट पे टच करना है और फिर अगेन रिस्पॉन्स में ब्लिंकिंग ऑफ द आई होगी, ठीक है। और साइड से लेकर आना है कॉटन को, सामने से मत लाना। Now the palatal reflex और the gag reflex। तो ये क्या होता है, इसमें एफरेंट जो होती है 9th नर्व और 5th नर्व है, और ईफरेंट जो है वो 10th नर्व है। तो इसमें क्या करते हो, कोई भी स्वैप स्टिक जो होती है उससे एकदम पोस्टीरियर फैरेंजियल वॉल पे आपको टच करना है और इमीडिएटली क्या होगा, गैग रिस्पॉन्स।
जैसे कभी सुबह ब्रशिंग में ब्रश एकदम पीछे टच हो जाते हैं तो इमिडिएटली जो गैगिंग प्रोड्यूस होती है उसी को हम बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स. So this is the palatal reflex or the gag reflex. Afferent ninth and fifth nerve, mainly ninth nerve, और efferent जो है वो 10th nerve. ठीक है, सो ये वाले cranial nerve reflexes थे. Light reflex, direct and indirect, accommodation, corneal reflex, conjunctival reflex, and palatal reflex. So अगर एग्जाम में